textbook. Which page number? Next, we are saying about the Samay ki Pabandi, punctuality. Okay, page number 59. Samay ki Pabandi. Samay ki Pabandi, just you underline that word. Kah diya hai, page number 59. Kah diya, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। फ्रॉम दिस लेखक ने हम कहते हैं कि essay writing, essay writing के बारे में कहते हैं, essay writing. Okay, इंग्लिश हिंदी मलयालम we are getting essay writing के बारे में कहते हैं. Yes, ma'am. समय की पाबंदी, always समय की पाबंदी. So please switch on your video. Aditya, Revu, Shifana. How much time I am repeating? Sir, my last class sir also told the same thing. So, okay, समय की पाबंदी, समय की पाबंदी. Once more I will read. कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों meaning page से कम न हो. अब आप कापी सामने कापी meaning book, कलम हाथ में लिखो, उसके नाम को रोइए. कौन नहीं जानता है कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है. इससे आदमी के जीवन में संयम meaning control जाता है. दूसरों का उस पर स्नेह होने लगा. समय की पाबंदी, if you are keeping what is the use? He is saying that जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार बनाना बिजनेस में उन्नति होती है. अब we are keeping, we will get where समय की punctuality, we will get unnati this field. Okay. but लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? What is the use for writing 4 page? If we are keeping punctuality, we will get progress our life and our business like that. Period. Okay. Then what is the use for writing in the essay? No use, he says. I didn't explain more. It's not practical life. That's why. Okay. He's against that. लेकिन इस जरा भी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकते हैं, just one sentence enough. No need 4 पन्ने 5 पन्ने. No need, only one sentence enough. Okay. 4 पन्नों में लिखने की जरूरत है. मैम तो इसे हिमाकत में stupid. I will say this is stupid. हिमाकत stupid. यह तो समय की किफायत नहीं. किफायत meaning save, not save. I will say this not, we can't save this. बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को टूट दिया जाए. हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना को झटपट कह दे और अपनी राख ले. मगर नहीं, no need to talk more time. That also no need. He say मगर नहीं, आपको 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे. चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल के आकार के. एक other what is the use essay writing? Full page neatly, or that is the rules and regulations also, not simply writing. What is the use? He say. नेक्स्ट, यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है. संक्षेप में लिखो. दैट आल्सो फूलिश. संक्षेप में लिखो. ओके, राइट. संक्षेप में लिखो. we will get like that question. संक्षेप में लिखो. no need like that question. That is very foolish question. समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो. ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं. शायद 100-200 पन्ने. you underline मकला. one word question ആണ്. 100-200 पन्ने. 100 or 200. 100-200 पन्ने. അത് MCQ question ले we will revise that. 100 कितने पेज he is saying. Okay. 100-200 पन्ने underline. लिखवाते. तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी. already we told. तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे. How can manage the same time? System run and walk at the same time. How can do? उल्टी बात है, that is wrong बात या नहीं.
बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज, तमीज मीनिंग विजडम. Okay, teachers also foolish. Okay, he say उस पर धावा है. धावा meaning claimed. He claimed. He justifies that. Okay, हम अध्यापक हैं. He say we are teachers. Okay. मेरे दर्जे में आओ लाला. After that he say मेरे दर्जे में लाओ तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा. Again he is repeating that same thing. इस दर्जे में अवल आ गई. अवल already we told. What is that? First. दोस्त जमीन पर पाव नहीं दिखते, इसलिए मेरा कहना मानिए. लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ. संसार का मुझे तुमने कहीं ज्यादा अनुभव है. जो कुछ करता हूँ उगे गिरह बांधिए नहीं पछताए. He is saying you have got that bookish knowledge and I have practical knowledge. You got scientific knowledge or bookish knowledge. You got practical knowledge. Next one. स्कूल का समय निकटता नहीं. ईश्वर जाने एक उपदेश माला. यहाँ पे he is thinking always he is advice enough always. His paragraph is saying that. Next, just I will read. स्कूल का समय निकटता नहीं. ईश्वर जाने एक उपदेश माला कब समाप्त होती. भोजन आज मुझे स्वाद सा लगा. He can't eat it. When we are hearing always scolding, we can't eat food. Okay. Huh? Yes or no? Like that. And also here. जब पास होने पर यह तिरस्कार हुआ. I passed it. Now also he is saying scolding. If I fail now, what is will be the condition? He thought by thinking. तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही लेने ही लिए जाए. He will take my प्राण also. Already I passed it. And then also he's saying like this, he's scolding. If I fail now, what will be the condition? बाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र गिन था, उसने मुझे भयभीत कर दिया. स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा. यही ताजबुके की नितने तिरस्कार भी की पुस्तकों में मेरी अरुचि जो भी क्यों बनी रही है. खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता. पढ़ता भी मगर बहुत कम. Then also he can't study. Okay, always he is playing. He will hear all advices, but he didn't follow. Always he will play. Yes, बस इतना की रोज टैक्स पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े. अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का सा जीवन करने लगा. चुपचाप रहा. He heard everything and nothing he didn't say. Okay. And the next one, very important. फिर सालाना इम्तिहान हुआ. Again, exam came. What happened? और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हुआ. Again, बड़े भाई साहब फेल हुआ. Okay. Next one. मैंने भी खुद मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया. मुझे खुद अचरज हुआ. भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया. कोई का एक एक शब्द चाट गए थे. ही मेक टाइम टेबल एंड ही स्टडी. हाउ 10 बजे रात तक 4 बजे भोर से उधर से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले. लाइक दैट ही मेड टाइम टेबल. व्हाट इज द यूज? ही फेल एंड नेक्स्ट वन. मुद्रा गांधीहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए. मुझे उन पर दया आती थी. ही को फिर नदी सा सुनाया गया तो वह रो पड़े. और नेक्स्ट पेज 60. मैं भी रोने लगा. दिस टाइम बड़े भाई रोने लगा. मैं भी रोने लगा. अपने पास होने की खुशी आदि आदि हो गई. मैं भी फेल हो गया तो भाई साहब तो इतना दुख नहीं होता. लेकिन विधि की बात कौन डाले. अगेन he failed. One second. What he is saying, when my brother
failed the exam. I felt sorry for him and cried. I was not happy with my success also. Okay. Yes, listen here. इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका हाना मानो वे बेखुद बार फेल हुआ लेकिन लेके गया था ऑलरेडी आई टोल्ड you have got a bookish knowledge and I have what is the knowledge practical knowledge he's saying that one this paragraph में इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि उनका कहना मानो वे बेखुद बार फेल हुए लेकिन ले गए ने बड़े से और संसार का लेके के ज्यादा अनुभव किया this is the practical knowledge. Bade bhai, you got a practical knowledge. You got only bookish knowledge. Okay. जो कुछ समझ रहे हैं उन्हें समझ जाना क्यों तो पछताए नेक्स्ट वन फिर सालाना इम्तिहान हुआ आज फिगर परीक्षा आया कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और 22 अगस्त फिर फेल हो गई क्लियर ओके मैम ने बेखुद मेहनत नहीं की ಅದು ऑलरेडी वी नो ये मैम ने मीनिंग छोटा छोटा भाई लेखक मेहनत नहीं पर न जाने कैसे दर्जे में अवल अवल मीनिंग फर्स्ट आ गए मुझे खुद आश्चर्य हुआ भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया कोर्स का एक एक शब्द चाट गए दे मगर बेचारे फेल हो गए मुझे इन पर दया आती तो करना इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे इन पर दया आती थी मुझे इन पर दया आती थी आप पेज नंबर 60 पेज नंबर 59 ले लास्ट पैराग्राफ जस्ट यू अंडरलाइन मगर बेचारे फेल को गए मुझे उन पर दया आती थी अंडरलाइन पेज नंबर 59 लास्ट सेंटेंस ओके one question answer is coming there okay yes नदी सुनाया गया तो अल्लाह that also underline नदी जहाँ सुनाया गया तो वह रो पड़े और पेज नंबर 60 में भी रोने लेकर you underline this one page number 59 and 60 बहुत तो रो पड़े और मैं भी रो अपने पास होने की खुशी आदि हो गई okay when my brother failed the exam I felt sorry for him and cried what do you happen next to that I was not happy with my success clear any next one पेज नंबर 60 मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंदर हाँ कितने दर्जे का अंदर हाँ? बीच केवल एक ही कक्षा का कितने बार फेल हो गया पहले पेज में हमने देखा हाँ कितने कक्षा में अंदर बताओ 3 कक्षा में अब कितने कक्षा अंदर 2 या मेरे और भाई साहब पेज नंबर 60 मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंदर और एक गया तो छोटे भाई छोटे भाई 8वीं कक्षा में बड़े भाई 9th स्टैंडर्ड ओनली 1 क्लास डिफरेंस कितने टाइम फेल हो गया हुआ yes don't know ma'am 2 times हाँ yes और मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंदर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई अब व्हाट ही इज थिंकिंग क्योंकि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो व्हाट विल हैपन मैं उनके बराबर हो जाऊं वी विल बी इक्वल he is thinking again once more he fail in the 9th standard
He will reach there. Okay. So they will be in the same class. So he is thinking like that. फेल हो गई मैं के बराबर हो जाए फिर वाक्य किस आधार पर मेरी फजीहत कर सके after that how he will scold me. We are staying in class now. That's right. लेकिन मैम ने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल ढाला आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते ही मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य मगर एक शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैम ने घनादन पास हो जाता है और इतने अच्छे नंबरों से बट ही एवरीथिंग ही केप्ट इन हिज माइंड ओके तो लेखक और भाई साहब के बीच अब केवल एक ही कक्षा का अंदर हो गया there is one class difference between छोटे भाई and बड़े भाई okay so I had a bad thought in my if my brother failed one more time, then we will in the same class. But last what happened? उस समय उससे जरूर बुरा तो लेकिन जानता है after that what he understand that he is scolding me for my good. He know. Okay, bede bhai, always scolding me for my good. Please, clear. After that, I will call next one. Page number 60. Third paragraph. The buying saga कुछ नरम पड़ा underline very important. Okay. अब buying saga कुछ नरम पड़ा this very important. नरम meaning soft. वेरी इम्पोर्टेंट कई बार मुझे ढांटने का अवसर पाकर भी उन्हें धीरज से काम लिया शायद अब वक्त खुद समझने लग देखे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा ना इसकी फेल्ड अगेन नाउ ही इज वेरी सॉफ्ट ही डिडंट कॉल ऑलवेज बेखुद का मेरी स्वच्छंदता भी बड़ी when he stopped scolding that time he started his freedom also स्वच्छंदता भी बड़ी meaning I got freedom full freedom मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उड़ाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई मैं पास ही हो जाऊंगा पढ़ूं या न पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब ने डर से जो दौड़ा बेखुद पढ़ लिया करता था वह कभी बेंदु हुआ मुझे कनकवे what is the meaning कनकवे flying the कनकवे पतंगबाजी you remember that word also पतंगबाजी कनकवे उड़ाने का कनकवे meaning flight kite कनकवे उड़ाने का अदब करता था और उन उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया now when he reached in 8th standard he start कनकवे और पतंगबाजी और अब सारा समय पतंगबाजी again another word पतंगबाजी flying kites what is the word कनकवे पतंगबाजी you remember that word flying kite पतंगबाजी and कनकवे you remember that he got a new game what पतंगबाजी okay he started a new game पतंगबाजी and कनकवे उड़ाने का नया शौक पैदा होया और अब सारा समय always he is doing that see that picture always he is doing that सारा समय पतंगबाजी की ही बेन होता था ओके कनकौवा मीनिंग पतंग he started new game क्या है कनकौवा और पतंगबाजी up to there bracket close अब पेज नंबर 63rd पैराग्राफ अब बाईं साहब खुद कुछ नरम पढ़ा दे 1 2 3 4 5 6 पेज और अब सारा समय पतंगबाजी की ही बैंड होता था up to there okay Starting from
Starting from page number 3rd paragraph. अब भाई साहब देखो तो कुछ नरम पड़ गए थे. Guys, Sahab already softened. He stopped all scolding everything. After that, he started Padangbaji. On page number 61. 60. Okay. Okay, page number 60. One question answer. That is one question answer. Okay. अब 22 आकर देखो तो कुछ नरम पड़ गया. इसके बाद क्या किया छोटे भाई? क्या किया? क्या मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही बैंड होता था. I spent full time for flying kites. Clear? Yes. Underline and put it. Next, continue page number 63rd paragraph. After that bracket. फिर भी मैम कई भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बिठाकर कनकौवे उड़ाता था. कनकौवे मीनिंग नॉट फ्लाइंग काइट्स. मैच देना, कन्ने भांजना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां. ही स्टार्ट सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू फ्लाइंग काइट. आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी. मैं भाई साहब को एक संदेह न करने देना चाहता था. ही उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है. नेक्स्ट, एक दिन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेचाहा दौड़ा जा रहा था. ऑन गेम आसमान की, अंडरलाइन, ऑन गेम आसमान की ओर. Note here, the textbook you underline, page number 64, paragraph. एक दिन संध्या समय, that no need. हॉस्टल दूर से में इनके कनकौवा लूटने बेहासा दौड़ जा रहा थे. on came onwards, put bracket. on came आसमान की ओर थी. Okay. When we are doing flying kite, where we look down or upper? Upper. Okay, we will follow that kite also. अब आगे आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पतंग की ओर जो मंद गति से छूटा पतंग की ओर चला आ रहा था. मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करते जा रही हो. भालकों की पूरी सेना लगे और शानदार बात लिए इनका स्वागत करने की दौड़े आ रही थी. और रनिंग वेर ये पतंगबाजी के पीछे दौड़ते हैं. किसी को अपने आगे पीछे की खबर न दी. सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है. ना मोटर कार है, ना ड्रम, ना गाड़ियों. They didn't mind always. They follow this kites. They didn't mind it. Road, car, nothing. They didn't mind it. They are running. He Sote Bai and his friends. They follow the kites. This time what happened? समस्या भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई. He saw बड़े भाई ने. In between, he saw. He's scolding. That is it. Okay. Next. What he told is, जो शायद बाजार से लौटे. He is coming from बाजार. उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया. He catched और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लाउडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म? Are you ashamed? Why are you running like this? Are you ashamed? No. तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अपनी जमात में नहीं हो. Now you are in which class? 8th standard. बल्कि 8वीं जमात में आ गए. Now you reach in 8th standard. Then also he is playing with the friend. Okay.
मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन, हाँ ज्ञान, पोजीशन में हाल में अवस्था ज्ञान रखना चाहिए। आफ्टर दैट ही इज सेइंग सम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल एक बड़े भाई साहब, नेक्स्ट पैराग्राफ, बड़े साई साहब लेखक को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर साहब को ही दोगे। फर्स्ट ही सेइंग एग्जाम्पल अबाउट हेडमास्टर साहब के बारे में ही सेइंग, व्हाट ही सेइंग, हेडमास्टर साहब को he is educated but he don't know how to manage the home. Headmaster Sagam, he got a degree from Oxford University, but he don't know how to manage the home. That is his saying. First example. Okay. After that, दादा ने अपनी उम्र का बड़ा हिम्मत, इज्जत और अच्छे कामों करते हुए किया और परिवार का पालन किया है, जिसमें नौ व्यक्ति हुआ करते हैं। आफ्टर दैट ही इज सेइंग हिज अप्पा अम्मा के बारे में कहते हैं। व्हाट ही सेइंग our papa and amma, they are not educated but they know how to manage home. He is saying what is the difference between headmaster and our appa amma. Headmaster got a degree, but he don't know how to manage how to manage the home. But our papa and our parents are not educated, but they know how to manage the home. Clear now? Yes. Last paragraph he's saying that. I will read page number 6. Okay, what he's saying, what is the difference between headmaster and our parents? Headmaster is educated, but he don't know how to manage the home. But our parents are not educated, but they know how to manage the home. Already always he's saying you got only, you didn't get a practical knowledge, only bookish knowledge. Okay, I have practical knowledge. And he is saying example also. Headmaster and our parents, what is the difference? Okay. ओके, जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते हैं। मैं कितने ही मिडिल सीओम को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे में okay, once more. एक जमाना था कि he saying they got so many degree and all, but what is the use? ये जमाना कि लोग 8वां दर्जा पास करने की कर बहुत सारी लौड़ों के साथ कनखवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी किस काम अखली पर दुख होता है, तुम जमीन को इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डालो। तुम अपने दिल में समझ दो कि मैं भाई सागम से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अंडरलाइन दैट, पेज नंबर 61, 1 2 3, थर्ड लाइन। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई सागम से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अंडरलाइन। यस, अब उन्हें तुम मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। ओके, यस। और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का एक ही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्षा हो जावे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम्हें भी 5 साल का अंदर है। तो ऑलरेडी फर्स्ट पैराग्राफ वी टोल्ड, उसे तुम क्या खुद भी नहीं मिटा सकता। ओके, आफ्टर दैट जस्ट यू पुट ब्रैकेट। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। डिड यू सी वेयर आई एम रीडिंग? पेज नंबर 61। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी
बराबरी नहीं कर सकते. And from there, from में you put the bracket. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा. मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते. चाहे तुम MA और DW और की क्यों न हो जाएंगे. Sometimes you will get a MA degree like that, knowledge you will get, but you will fail in your family life maybe. He's saying. समझ से किताबों पढ़ने से नहीं माती, दुनिया देखने से आती है. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, किताबें पढ़ने से नहीं माती. अंडरलाइन दैट वन. किताबें पढ़ने से नहीं माती, दुनिया देखने से आती है. यू जस्ट यू दुख दुनिया नोट इन योर बुक. हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास. Did you understand? Already I told you now what is the different headmaster and appa amma. हमारी अम्मा माम ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादाजी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे लिए और फादर गोट ओनली 5th स्टैंडर्ड एजुकेशन. लेकर हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विदा पढ़ ले, बट दे हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. अम्मा और दादा को हमें समझाते और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेंगे, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा. Okay, they have practical knowledge only. और रहा up to there you close with that bracket. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. Start from here. दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा. Bracket close. Okay. Then again आगे he saying अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है. He don't know अमेरिका किस तरह की राज्य व्यवस्था. पापा अप्पा अम्मा को नहीं समझा अमेरिका की किस तरह की राज्य व्यवस्था. और 8वें हेनरी ने कितने बैक किए और आकाश में कितने नक्षत्र के. They don't know who is Henry at आकाश में कितने तारे. They don't know not. They have no साइंटिफिक नॉलेज, बट एक बातें चाहिए उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं. दे नो सो मेनी अदर थिंग्स जिनका ज्ञान उन्हें हजूदे और तुमसे ज्यादा है. दैट वाज इन. ओके, they didn't get a scientific knowledge about, they don't know about America और साइंस के बारे में, but they have practical knowledge. Okay, after that next paragraph he's saying if we are getting any fever anything, what we will do, what our parents will do, what is the difference. Okay, they are in hostel, sometime we will get any sick, that time what we will do, what our parents will do, what is the difference. Clear? Next paragraph they are saying that. Okay, next period we will continue that. Okay, appo ee textbook le whatever I gave and okay, say bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.